नमस्ते दोस्तों, आज हम कंपाइलर डिज़ाइन के बारे में कुछ बात करेंगे। इस वीडियो में हम समझाएंगे और दिखाएंगे असेंबलर क्या है और उसके साथ कुछ एग्जांपल्स भी। वीडियो को देखने से पहले सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें और बेल आइकन क्लिक करें ताकि आप कोई अपडेट मिस ना करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो एक लाइक दीजिए और किसी ऐसे व्यक्ति को शेयर करें जिसको उपयोग लगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला है व्हाट इज असेंबलर। असेंबलर क्या है, आप लोगों को कैसे समझाएंगे। पहला है ट्रांसलेट्स असेंबली टू मशीन कोड, enables execution of low level instructions on hardware, crucial for system level programming and hardware specific applications, produces object or executable files, outputs machine code in object or executable files, efficient execution, assembled code runs efficiently as it is in the machine's native language. Error detection and reporting, detects and reports errors during the assembly process. Symbolic names, uses symbolic names for memory addresses and instructions. Easier for humans to read and write compared to machine code. Performance optimization. Performance, simple optimizations to improve performance or reduce memory usage. You may not understand what I am speaking here, तो इसलिए हम दूसरी तरह से समझाते हैं। एक लाइन में समझाते हैं, हर चीज का डेफिनेशन आ जाएंगे उसमें। An assembler is a crucial tool in system programming and hardware specific applications. It translates assembly language, a low level human readable code, into machine code, which is the binary instructions that a computer's CPU can execute directly. Assembly language is closer to machine code, but still more readable and manageable for humans compared to raw binary code. ठीक है, ये एग्जामिनर के लिए था। अगर आप कोई ऐसा व्यक्ति है जो असेंबली को नहीं समझ पाए, वो असेंबली पता ही ना हो, तो आप उसको किस तरह के समझाएंगे। ये है, हम थोड़ा सा रोबोट की तरह इंस्ट्रक्शन बताते हैं। ठीक है, सोचिए थोड़ा। इमेजिन you are writing instructions for a robot in English, but the robot only understands binary code. और क्या है, a series of ones and zeros. ठीक है, you need something to convert your English instructions into a language that the robot can understand. ठीक है, that's where an assembler comes in. समझ में आ गया। अब आगे पढ़ते हैं असेंबलर कैसे काम करते हैं। हाउ डज एन असेंबलर वर्क। पर हम लोग को पता था एन असेंबलर इज अ स्पेशल प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज कोड इनटू मशीन कोड। Assembly language is a low-level programming language that is specific to a computer's architecture. It uses symbols to represent machine-level instructions, making it easier for humans to write and understand. ठीक है, अब हम इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देते हैं ताकि आपको
क्लियरली समझ में आ जाए असेंबलर क्या हो रहा है। पहला स्टेप है राइटिंग इन असेंबली लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस वो क्या हम करें। सोचिए, you write a program using assembly language which is more human readable than machine code but closely related to the hardware's instruction set. एक एग्जांपल सोचिए, suppose you want to move a value from value into a register, a small fast storage location in the CPU. ये है एग्जांपल दे रहे हैं, ये है move ax5 add ax3, ठीक है। ये move ax5 क्या हो रहा है, this instruction tells the computer to move the value 5 into the register ax, ठीक है। अब है add ax3, this instruction tells the computer to add 3 to the value in the register of ax। समझ गए। अब दूसरा स्टेप में आते हैं, क्या है वो दूसरा, ट्रांसलेटिंग टू मशीन कोड, वो है कन्वर्शन टू मशीन कोड, ठीक है। और यहाँ क्या हो रहा है, द असेंबलर रीड्स द असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस एंड ट्रांसलेट्स देम इनटू मशीन कोड which is the binary representation that a computer CPU can execute directly. Example है, the assembler converts the above instructions into binary code, जैसे कि एग्जाम्पल ये है move ax5, इसको बाइनरी कोड में कन्वर्ट कर दिए, ठीक है। अब add ax3 है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दिए। आप देख सकते हैं, समझाते हैं इसको। each assembly instructions corresponds to a specific binary code, ठीक है। देख सकते हैं move ax5 might be translated to 10111000, ठीक है। अब है उसके बाद है कुछ जीरोस है 101, where 10111 fit into 0 is the opcode for MOV, and और कुछ zeros है 101 which is the binary representation of 5। समझ गए। उसी तरह add ax के लिए हो गया ये वाला, ठीक है। अब 3 के लिए बाइनरी कोड हो गया ये वाला, ठीक है। जैसे हम बोले थे मूव ax जो था ये हो गया बाइनरी कोड, और 5 हो गया ये वाला। चलिए आगे पढ़ते हैं, स्टेप 3 में आते हैं। स्टेप 3 है प्रोड्यूसेस आउटपुट फाइल्स, यानी कि क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट फाइल्स। The assembler takes the translated machine code and creates an object file. The file contains the binary code but isn't yet a complete standalone program. Example हम दे दिए, the object file might look something ऐसे कुछ दिखता होगा, ठीक है। ये बाइनरी कोड है 10 3 to 1 फिर 3 to 0 ऐसे ही, ठीक है। जो पहले जो था मूव ax5 उसको बाइनरी कोड में यहाँ लिख दिए हैं। अब है क्वेश्चन है यहाँ लिंकिंग क्या होगा, ये लिंकिंग का क्या है। सोचिए, अगर इफ योर प्रोग्राम इज लार्ज एंड कंसिस्ट्स ऑफ मल्टीपल मॉड्यूल्स, you can link these object files together to create a complete executable file. This linking process combines all the object files and resolves any differences between them. अब आते हैं स्टेप 4, वो क्या है, एफिशिएंसी।
एफिशिएंसी क्या है? When the CPU encounters the machine code, क्या था 10111 फिर इंटो 0 फिर कुछ जीरो है 101, ठीक है. It knows immediately to move 5 into the AX register. और जब देखते हैं कि तो कुछ जीरो है 101 आया है और कुछ जीरो 11 है, तो उसको समझ में आ जाता है कि उसको ऐड करना है 3 किसमें, AX में. ठीक है. अब है स्टेप 5 यानी कि डिटेक्शन. वो क्या है? While translating, the assembler also checks the instruction for mistakes. सोचिए अगर आप एरर किए हैं मूव आर्म अप, जबकि हम लोग को लिखना था MOV आर्म अप, ये कंप्यूटर लैंग्वेज में है MOV, और हमने लिख दिया है MOVE, तो ये हम लोग के लिए मिस्टेक हो गया. अब है स्टेप 6 यानी कि सिंबॉलिक नेम्स. Assembly language allows us to use symbolic names instead of raw memory addresses or registered names, making the code more readable and easier to manage. एक एग्जांपल देते हैं. अगर इंस्टेड ऑफ यूजिंग हार्ड कोडेड एड्रेसेस हमने दिए है मूव AX, लिख दिए कुछ कोड दिए हैं 00401 कुछ जीरो से, आप इसको सिंबॉलिक नेम्स में लिखें. मूव AX वो है क्या है, स्टार्ट. Start is a symbolic name that represents the memory address. ठीक है, 0 into 00401 कुछ 0. This makes the code easier to read and understand. अब लास्ट स्टेप है optimization. The assembler can also optimize the code. This means it can make the code instructions more efficient, using less memory or running faster. It's like a spell checker. आप देख सकते हैं एग्जांपल में उसी ग्रामर वेबसाइट रखे होंगे बहुत सारा, उसी तरह स्पेल चेकर. That does not only corrects your mistakes but also suggests better ways to write your sentences. A example दे रहे हैं. Suppose you write move AX5 add AX3. The assembler might optimize this to move AX8. हम लोग को तो पता था 5 + 3 होता है 8, तो assembler उसको एक ही जगह में लिख सकते हैं move AX8. ठीक है. हम आपको एक अच्छे से एग्जांपल दे रहे हैं पूरा assembler के, और उसको अच्छे से समझाते हैं क्या है. आपको सारा स्टेप 7 तक हम समझा दिए आपको. जैसे कि स्टेप 1 में था राइटिंग इन असेंबली लैंग्वेज, उसके बाद स्टेप 2 में आए थे ट्रांसफरिंग टू मशीन कोड, उसके बाद था स्टेप 3 में प्रोड्यूसेस आउटपुट फाइल्स, उसके बाद था स्टेप 4 में एफिशिएंसी, फिर स्टेप 5 में एरर डिटेक्शन, फिर स्टेप 6 में सिंबॉलिक नेम्स, और स्टेप 7 में आप देख सकते हैं ऑप्टिमाइजेशन. अब ये सारा चीज मिला के हम आपको एक चीज एग्जांपल में दिखाते हैं. ये है छोटा सा प्रोग्राम. जैसे स्टार्ट किए मूव AX5 एड AX के 3 मूव BX के AX फिर JMP स्टार्ट. ठीक है. अब उसका मीनिंग हम साइड में लिख दिया है. अभी क्या हो रहा है देखिए. पहला हम स्टेप दिखा सुनिए. मूव AX5, क्या हो रहा है मूव X. इसका मतलब दिस मीन्स
put the number 5 into the AX register. सोचिए AX as a small box where you can store numbers. ठीक है, अब दूसरा स्टेप है add AX3. This adds the number 3 to whatever is currently in the AX register, which is 5. तो AX contains क्या हुआ 8. पहला था 5, अब 3 ऐड हुआ तो क्या हुआ पूरा टोटल में 8. ठीक है, अब आते हैं स्टेप 3 में. स्टेप 3 क्या है, मूव BX AX. इससे क्या मतलब है, दिस मूव्स द नंबर फ्रॉम AX जो 8 था टू अनदर बॉक्स कॉल्ड BX. AX में 8 था, वो गया BX में. अब स्टेप 4 में है जो है P स्टार्ट, वो क्या है जंप. ये क्या करो, दिस टेल्स अ प्रोग्राम टू गो बैक टू द बिगिनिंग. उसका मतलब है द स्टार्ट लेवल एंड रिपीट. ठीक है, पर एक चीज है, द असेंबलर ट्रांसलेट्स दिस इंस्ट्रक्शंस इनटू मशीन कोड. ये तो पता था. The computer knows exactly what to do. अगर if there is an error, so you typed move AXX5, ठीक है, तो क्या हमें प्रोग्राम में AXX है ही नहीं. The assembler would notify you of the mistake. ठीक है, assembler बता दें कि आपको AXX है नहीं, आपका है move AX. ठीक है, आपको शायद समझ में आए होंगे कि असेंबलर क्या है, कैसे उसका काम है. इतना ही तक है हमको वीडियो. धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए. अगर आपको पसंद आए हो तो एक लाइक करें और सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें. चलिए आते हैं अगले वीडियो में मिलते हैं. अभी के लिए बाय बाय.